Indian Railway has introduced a major route change for the Amritsar Sri Mata Vaishno Devi Katra Vande Bharat Express. The new route came into effect on June 16th. The decision aims to improve connectivity and provide better travel options for passengers. The semi-high speed train now runs through Batala and Gurdaspur. Earlier, it operated through Jalandhar Cant. Railway officials said the change will benefit thousands of passengers. It will also help pilgrims travelling to the famous Sri Mata Vaishno Devi shrine in Jammu and Kashmir. The Vande Bharat Express was flagged off by Prime Minister Narendra Modi on August 10, 2025. Since then, it has become a popular choice for passengers because of its speed and comfort. The Railway Board approved the route change in March 2026. The train is operated and maintained by the Firozpur Division of Northern Railway. Officials said the revised route was introduced in the interest of passenger convenience and better regional connectivity. Under the new alignment, the train travels from Amritsar to Katra via Batala, Gurdaspur, Pathankot and Jammu Tawi. The new route connects important towns that previously did not have direct access to the Vande Bharat service. Train number 26405 departs from Amritsar Junction at 4:25 pm. It reaches Sri Mata Vaishno Devi Katra at 10 pm. The total journey takes around 5 hours and 35 minutes. In the return direction, train number 26406 leaves Sri Mata Vaishno Devi Katra at 6:40 am. It arrives at Amritsar Junction at 12:20 pm. The travel time remains a little over 5 hours. Railway officials believe the revised route will attract more passengers. Residents of Batala and Gurdaspur are expected to benefit the most. They will now have faster and more convenient rail access to Jammu and Kashmir. The train offers modern facilities. This includes comfortable seating, onboard catering, and improved passenger amenities. The service has received a positive response from travelers since its launch. And the Amritsar Katra Vande Bharat Express operates 6 days a week. It runs on Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. The train does not operate on Tuesdays. Officials said the route change is part of Indian Railways' efforts to improve connectivity across regions. The move is also expected to boost religious tourism. Faster travel will encourage more devotees to visit the Vaishno Devi shrine. Passengers are advised to check the latest timetable before planning their journey. Railway authorities have welcomed the route change and expect the enhance the travel experience for thousands of passengers every week. काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि हमारे जम्मू की फ़्लाइट्स की टिकट काफ़ी कॉस्टली है। तो जो आउट ऑफ हमारे जम्मू रहते हैं वो दूसरे स्टेट से अमृतसर आके बाई फ्लाइट आगे कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। 2-3 घंटे में जम्मू पहुंच जाना, एक तो अपना कंफर्ट भी है, इसमें कैटरिंग भी है और अपना टाइम भी इसका सही है, शाम में निकलती है, इवनिंग टाइम तक पहुंचा देती है। हाँ, क्योंकि पंजाब के लिए कनेक्टिविटी हो गई और जम्मू के लोगों के लिए भी कनेक्टिविटी हो गई। क्योंकि अगर हम लोगों को पहले गोल्डन टेम्पल आना बाय रोड ही आना पड़ता था, अब हमको क्या डायरेक्ट ट्रेन मिल चुकी है, तो हमको सबसे अच्छी बात वही है। हमको भी पंजाब और अमृतसर पूरा अच्छा कनेक्ट हो गया, तो हमको बेटर ही है ये। अच्छा स्टेप है और ऐसे स्टेप्स और लेने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी करनी चाहिए। वंदे भारत स्लीपर भी लेके आए इस रूट पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वेलकम। भुवनेश विज अमृतसर से हूँ। बहुत फ़ायदा होगा, जैसे लोग धार्मिक स्थान पे जाने वाले हैं उसके लिए बहुत इनको फ़ायदा होगा। लोग जो लोकल पर्सन है और भी इनके कारण बहुत फ़ायदा होगा। वैष्णो देवी के लिए सीधी ट्रेन होगी। पहले क्या दिक्कत आती है, अब क्या फायदा होगा? पहले एक वीकली ट्रेन चलती थी, वो भी थोड़ा टाइम चली है, मंडे चलती थी और ट्यूसडे उधर से वापस आती थी। अभी वो बंद हो गया है, ये नई ट्रेन स्टार्ट की है और लोगों के लिए बढ़िया है ये धार्मिक स्थान का। थैंक यू। सीता बिश्नोई, हम राजस्थान से। जो अमृतसर से कटरा के लिए गई थी, कितना फायदा होगा लोगों के लिए? लोगों के लिए ना वंदे भारत का तो फायदा ही फायदा, डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है
और इसका टाइमिंग भी बहुत अच्छा है। शाम को इस टाइम 9:30 ले जाके वहाँ छोड़ दिया। अगर कोई टूरिस्ट भी जाते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया बात है। और धार्मिक स्थान के लिए, टूरिस्ट लोगों के लिए धार्मिक स्थान एकदम बेटर है। सही टाइम पे पहुंचा देती है स्टे करने के लिए। और टाइमिंग का इशू नहीं है, बहुत अच्छा टाइमिंग। और काफ़ी स्टेशन को बीच में कवर करते हुए जाएगी। सब लोगों को फायदा है, हर एक पब्लिक को फायदा है इस चीज़ से। ये अमृतसर से हमसे चली श्री वैष्णो देवी कटरा, ये ट्रेन पहले भी चलती थी और कारणवश किसी आपको मालूम ही है कि पिछले साल बारिश हुई थी, रास्ता टूट गया, उसका बंद कर दिया गया इसको। उसके बाद वाया इसका जो है अब पठानकोट की तरफ से कर दिया गया। ये ट्रेन कितने डिब्बों की, क्या क्या फैसिलिटी और कितने पैसेंजर, क्या टाइम होगा इसका? 8 डिब्बों की ट्रेन है जी। ये वंदे भारत, ये मोदी साहब का ड्रीम है और आपने देखा हिंदुस्तान में काफ़ी जगह चलाई जा रही हैं जी। अमृतसर से ये गाड़ी तो जाती है, आपको पता, वंदे भारत दिल्ली में, और इन्होंने वैष्णो देवी वहाँ के लिए भी चलाई दूसरी गाड़ी, ये वाली वंदे भारत। 8 डिब्बा का कोच है और वाया इधर से जाएगी और अमृतसर से बनेगा 283 किलोमीटर वैष्णो देवी कटरा। सर ये आपकी एक सेवा ही है कि एक धार्मिक स्थान के लिए आपको एक चुना गया, क्या? ये तो देखो जी, ऐसे है, ऑफिसरों की मर्जी है, वो लगा देते हैं। वैसे इससे पहले भी जो चली थी उसके ऊपर ही मेरे को लगाया गया था और उसके बाद दिल्ली के लिए चली थी, कोई मैं लेके गया था। बिल्कुल जी, मैं तो भाग्यशाली समझूंगा, महामाई कृपा जी, तो गाड़ी लेके जा रहा हूँ। बाकी आप लोगों का सहयोग है, सभी लोगों का। ये गाड़ी अमृतसर चलेगी और अमृतसर को बहुत अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा जीटी रोड के ऊपर बहुत बसें खड़ी रहती हैं। Stay tuned with us for more updates. To like, comment, share and subscribe the channel.